Good afternoon to all. Myself Varsha Joharia, Assistant Professor of Modern Institute of Pharmaceutical Science, Indore. Today we will learn about gel electrophoresis. So, what is electrophoresis technique? Separation is brought about through molecular sieving technique based on the molecular size of the substance. Gel material acts as a molecular sieve. Gel is a colloidal in solid form. 99% is water. It is important that the support media is electrically neutral. Different types of gels which can be used are agar, agarose gel, starch, Cepadex, and polyacrylamide gels. A porous gel acts as a sieve by retarding or same in some cases by completely obstructing the movement of macromolecules while allowing smaller molecules to migrate freely. Agar gel is used for separation of different types of protein mixtures as well as nucleic acids. Polyacrylamide is most suitable for separation of nucleic acid. It is also frequently used in separating proteins, peptides, and amino acids from microgram quantities of mixed samples. Basically, what is gel electrophoresis? Gel electrophoresis technique is one of the most frequently method which is used for the chromatography technique या chromatographic evaluations of separation of proteins, DNA, lipids, nucleic acids, etc. Basically, we are electrophoresis technique is used for biological applications or forensic applications. Largely, if we are going to separation of DNA, we go for agarose gel electrophoresis, and if we're doing for protein separation, we go for polyacrylamide gels. Basically, two types of gels: agarose gel and polyacrylamide gels. Agarose gel is used for DNA separation, and polyacrylamide is used for protein separation. And electrophoresis means मतलब यूज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर जब भी हम सेपरेशन करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का या डीएनए का या प्रोटीन का सेपरेशन, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करते हैं. जब भी हम सेपरेशन जेल हम क्यों ले रहे हैं? जेल इज टेकिंग फॉर एज अ सपोर्टिव एजेंट लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. वी वर टेकन सिलिका जेल एंड एल्यूमिनम. But in gel electrophoresis, we used agarose gel for DNA separation, and protein separation के लिए हम polyacrylamide gel use करेंगे as a supportive. First, we have to prepare agarose gel solution by mixing of agarose powder and water, 99% water, and heat up to 40 degrees Celsius about 40 minutes. And after heating, we then cool than it, and it solidify after some times. Then spread it on gel plate या gel casting plate. So these are the block diagram of gel electrophoresis. In this technique, we have slot of comb, casting tray, glass slide, supporting desk, and agarose solution poured into the casting tray and comb. First, we have taken इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, है ना, एंड बफर हमको प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले हमको जेल बनाना पड़ेगा. जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है, हमको एग्रॉस पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करके उसको हीट करना है. हीट करने के बाद एक वो कॉलोइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉलोइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट होने के बाद उसे हमें जेल कास्टिंग ट्रे पे हमको स्प्रेड करना है. स्प्रेड करने के बाद जो ट्रे होगी सॉलिडिफाई हो जाएगी. सॉलिडिफाई होने के कारण क्या होगा? नेटवर्क, मतलब छोटे छोटे पोर्स वहां पे बन जाएंगे. एक जाल सुना हो तो आपने, छोटे छोटे पोर्स हमको वहां मिलेंगे. उस पोर्स में हम क्या करते हैं, इस ट्रे को हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन में रखते हैं. बफर सॉल्यूशन में रखने के बाद उस पर कॉम्ब अटैच करते हैं. कॉम्ब में होते हैं छोटे छोटे से होल्स, उसको हम बोलते हैं वेल्स. वेल्स में हम अपना सैंपल इंसर्ट करेंगे. देन फिर हम किसी भी कैपिलरी के थ्रू या माइक्रोपिपेट के थ्रू हम वेल्स में क्या करते हैं, सैंपल इंसर्ट करते हैं या सैंपल लोड करते हैं. उसके बाद हम इस चैम्बर को, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर को क्या करेंगे, किसी भी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, कैथोड एंड एनोड. एंड पावर सप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट. बट डीएनए की जो बैकबोन होती है या डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उस पे, उसकी बैकबोन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, मतलब कैथोड चार्ज.
तो वो हमेशा जब भी उनका मूवमेंट होगा तो वो होगा एनोड से कैथोड की ओर। तो जैसे ही हम अगर कभी डीएनए का सेपरेशन कराएंगे, ठीक है, हमने जेल कास्टिंग प्लेट तैयार करी, जेल कास्टिंग प्लेट के बाद वेल्स में अपना सैंपल लोड करना है, सैंपल लोड करने के बाद हमें उसमें पावर सप्लाई देना है, पावर सप्लाई देने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, करंट जनरेट होगा, देन उस करंट के कारण क्या होंगे, चार्जेस अपनी प्लेस से माइग्रेट्स होना शुरू होंगे, मतलब कैथोड एंड से वो एनोड की तरफ होंगे। अब यहाँ पे सेपरेशन हमको या तो मॉलिक्यूलर साइज वाइज करना है या मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है, कि लार्ज फ्रेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट्स या मॉलिक्यूलर वेट वाइज सेपरेशन हम करते हैं। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो उस पोर्स में से फास्टली इल्यूट होंगे, या जो उनका बैंड्स आएगा वो सबसे नीचे की साइड आएगा। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है या मीडियम है, मॉडरेट है, उनका सेंटर में आता है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उनका सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी कम होती है उस पोर्स में से इल्यूट होने की। जितना ज्यादा पावर सप्लाई हम करेंगे उतना ज्यादा फास्ट हमको सेपरेशन मिलेगा, ठीक है। जिनकी स्मॉल साइज कम होगी, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम होगा या जिस डीएनए फ्रेगमेंट की साइज कम होगी, वो उस पोर्स में से या जेल पोर्स में से वो इजीली इल्यूट होंगे सबसे पहले, देन मीडियम वाले, देन लार्ज वाले। स्मॉल वाले का सबसे नीचे स्पॉट या बैंड्स आती है, बैंड्स बोलते हैं हम इसको। जिनका मॉलिक्यूलर वेट मीडियम है उनकी सेंटर में, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उनकी सबसे टॉप में आती है। इस तरह से होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। For example, in this video, one negative end and one positive end, and here the sample, large sample and medium sample, small sample. So DNA is negatively charged ion, so DNA goes from anode to cathode end, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका यहाँ पे हमको सेपरेशन बैंड दिखेगा, जिनका मीडियम है वो सेंटर में, जिनका लार्ज है वो यहाँ पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो असेंबली होगी वो वर्टिकली भी हम अरेंज करते हैं, हॉरिजेंटली भी अरेंज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 3 टाइप के होते हैं, अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टार्च जेल एंड पॉलीअक्राइलामाइड जेल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पॉलीसेक्राइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवेड, क्रॉसलिंक पॉलीमर एक्राइलामाइड, जेल कास्टेड हॉरिजेंटली, जेल कास्टेड वर्टिकली। जब भी हम जेल को ट्रे पर इंसर्ट करेंगे, असेंबली जब भी लगाएंगे, तो एग्रोस जेल की हॉरिजेंटली लगती है एंड पॉलीएक्राइलामाइड की वर्टिकली। एग्रोस जेल नॉन टॉक्सिक होते हैं और पॉलीएक्राइलामाइड न्यूरोटॉक्सिक, सेपरेट लार्ज मॉलिक्यूल, सेपरेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कॉमनली यूज्ड फॉर डीएनए एंड यूज्ड फॉर डीएनए। स्टेनिंग कैन बी डन बिफोर पोरिंग द जेल, स्टेनिंग कैन बी डन आफ्टर पोरिंग द जेल। कॉमनली जो जेल है एज अ सपोर्टिव मीडियम हम यूज कर रहे हैं, लेस एक्सपेंसिव होता है, सेपरेशन इज गुड। एग्रोज इज सल्फेट फ्री फ्रैक्शन ऑफ अगर, जेल इज प्रिपेयर्ड इन बफर स्प्रेड ओवर अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। Agarose is a mixture of polysaccharide extracted from seaweeds, highly purified, uncharged polysaccharides. Advantages क्या क्या है? Easy to prepare and small concentration of agar is required. Resolution is superior though, so that of filter paper. Large quantities of proteins can be separated and recovered. Adsorption of negatively charged protein molecule is negligible. It absorbs proteins relatively less when compared to other. Sharp zones are obtained due to less absorption. Recovery of protein is good method for preparative. Disadvantage, electroosmosis is high. Resolution is less compared to polyacrylamide gel. Different sources and batches of agars tend to give different result and purification is often necessary. Applications widely used in immunoelectrophoresis to separate different types of protein mixtures as well as nucleic acids. And gel electrophoresis, preparation of agarose gel. First we have agarose found in solid state powder form. We हीट करना है इसको 45 डिग्री सेल्सियस पे, देन ये क्या करेगा, फाइनल जेल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा पोर्स इसमें हमको मिल जाते, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। थैंक यू।